Hello students, we have already started with trigonometric functions. Today we are going to see the projection rule and then we will start with exercise number 3.2. Now we'll go to the next part, that is the projection rule. अब ये भी थियरम है, ये भी काफी बार एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए. So the theorem is, in triangle ABC, the first one is A is equal to B into cos of C plus C into cos of B. Second, B is equal to C into cos of A plus A into cos of C. And the third one is small c is equal to A into cos of B plus B into cos of A. Now let's see how to prove this one. Now here we are just going to prove one of the statement, one of these three statement by considering all the possible cases. So to prove that, हम यहाँ पे first part prove कर रहे हैं, that is A is equal to B into cos of C plus C into cos of B. We'll consider the regular triangle. Usual notations में हम हमारा triangle consider करते हैं. So let altitude draw करेंगे. We are going to draw a altitude through A which is going to meet the BC at D point. So we can say that BD, this BD is called as the projection of AB on BC, and this DC is called as the projection of AC on BC. So ये projections हो गए. Now projection of AB on BC is equal to, अगर हमें चाहिए है projection of AB, ये AB का हमें projection चाहिए है on this BC, that is nothing but this BD. ये हो गया projection उसका. अब ये projection का value हम कैसे निकाल सकते हैं? By using the cosine of B angle. तो cos of B हमें पता है, cos of B हो जाता है, cos of B is adjacent side divided by hypotenuse. So you can say adjacent side is BD, and BD, so you can say that cos of B is equal to, you can say this is BD divided by C, and this will imply that BD is equal to C into cos of B. ये इस तरह से हमें मिला है प्रोजेक्शन. तो ये तो हो गया AB का प्रोजेक्शन. उसी तरह से हम AC का भी प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं. सो तो प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC इज इक्वल टू दिस DC. So DC का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है B into cos of C. Now if you look at this particular figure, we are going to consider three cases now. The first case is angle B and angle C are both acute angles. So if both of them are acute angle, तो इनका projection अगर देखेंगे तो अंदर के साइड होगा, इसका भी projection अंदर के साइड होगा. So we know this angle is going to be positive over here. So projection of AB on BC is equal to BD, which is C into cos of B. तो ये वैल्यू हमें मिल गया. We are just using the same thing over here. And the projection of AC on BC is also DC, which is equal to B into cos of C. Now if we look at the figure, we are going to get this. And now from the figure we also can say that BC, अगर हमें चाहिए है small a is BC. So BC is equal to BD plus DC. सो BD का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, DC का वैल्यू यहाँ पे है, हम पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है दिस इज C into cos of B plus B into cos of C. So that is going to give us B into cos of C plus C into cos of B, and hence the result small a is equal to B into cos of C plus C into cos of B. ये हो गया first case. Now let's look at the second case. Case number 2 is B is an obtuse angle. तो अगर B obtuse angle है, now again we are going to see the projections. So projection of AB, अगर हम AB का projection देखेंगे on BC, so now that is equal to BD over here, right? अब यहाँ पे हम देखेंगे angle कहाँ पे है. Now we want to find out this value, right? So angle अगर हम देखेंगे, the angle over here is 180 minus B, right? This angle. So ये एंगल हमें मिलता है पाई माइनस बी. सो वी कैन से cos ऑफ पाई माइनस बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय बी डी. सो दैट मीन्स यू कैन से बी डी इज इक्वल टू माइनस सी इंटू दिस इज cos ऑफ बी. सो ये हमें मिल गया
वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी। उसी तरह से हमें चाहिए है प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी, सो दैट इज इक्वल टू डी सी एंड दैट इज बी इंटू कॉस ऑफ सी। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गए। अब हमें चाहिए है स्मॉल ए का वैल्यू। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट स्मॉल ए इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू, नाउ दिस इज बिगर वैल्यू डी सी माइनस द वैल्यू बी डी। ये अगर माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है ये वैल्यू ए। So this is the relation now. Now we have both the values, so we'll put the values over here. तो value put करते हैं तो हो जाता है b into cos of c minus c into cos of b. So that value is equal to b into cos of c plus c into cos of b, and therefore we get a is equal to b into cos of c plus c into cos of b, and that is the result. ये हो गया हमारा case 2. Now the case number 3 is b is a right angle. तो अगर b right angle हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? अगर ये राइट एंगल है तो हमारा डी पॉइंट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा ट्रायंगल। सो दिस इज नाउ द ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल मिल जाता है तो RHS अगर हम देखें, RHS क्या हो जाता है? स्मॉल RHS इज स्मॉल b इंटू कॉस ऑफ सी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी। प्रीवियसली हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे थे, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं। नाउ विल पुट द वैल्यूज ओवर हियर, सो दैट इज इक्वल टू, दिस इज कॉस ऑफ बी। कॉस ऑफ बी का वैल्यू अगर हम देखेंगे 90 डिग्री बना है तो कॉस ऑफ बी का वैल्यू डायरेक्टली बन जाएगा 0। तो हमें मिलता है सिर्फ b इंटू कॉस ऑफ सी, और b इंटू कॉस ऑफ सी इज नथिंग बट बी सी। सो दैट यू गेट द वैल्यू एज इज इक्वल टू a एंड दैट इज इक्वल टू LHS एंड हेंस इट इज प्रूफ। सो ये हो गया हमारा प्रूफ। Therefore we can say a is equal to b into cos of c plus c into cos of b. Similarly we can prove the cases when c is a obtuse angle and c is a right angle. तो c को अगर आप obtuse angle और right angle लोगे तो भी ये इसी तरह से prove कर सकते हैं, and hence the result. So therefore in all the possible cases you get small a is equal to b into cos of c plus c into cos of b, and hence the result is proved. So बाकी के statements आप prove कर सकते हो using the similar method. Now we are going to start with exercise number 3.2. So starting with the first group of question, find the Cartesian coordinates of the point whose polar coordinates are √2, pi by 4. अब यहाँ पे हमारे पास polar coordinates दिए हैं और हमें Cartesian coordinates निकालने हैं। तो हमारे पास relation है between the polar coordinates and the Cartesian coordinates. We are just going to use that result. So in the solution we are given that r is equal to √2 and theta is equal to pi by 4. r कॉमा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अब रिलेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं r का और थीटा का, तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। सो √2 कैंसिल, हमें मिला x इज इक्वल टू 1। उसी तरह से y इज इक्वल टू आर साइन थीटा के अंदर r और थीटा का वैल्यू डालते हैं, हमें मिलता है y इज इक्वल टू √2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 विच इज √2 इंटू 1/√2। अगेन द वैल्यू इज 1। सो देयरफॉर यू गेट द रिक्वायर्ड कार्टेशियन coordinates are 1, and hence the solution. I hope you have understood the solution. ये ग्रुप में सभी क्वेश्चन इसी तरह से हैं. So remaining questions of this group you can try yourself. Let's start with the next group of question. The next group of question is find the polar coordinates of the point whose Cartesian coordinates are √2, √2. अब यहाँ पे आपको Cartesian coordinates दिए हैं और polar coordinates find out करने हैं. So let's see in the solution. Now from the coordinates of the given point, we observe that the point lie in the first quadrant. ये x देखे, these are the points given to us, right? अगर हम देखें तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव अगर देखेंगे तो हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। सो वी नो दैट द पॉइंट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर का, तो हमें मिलता है r स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, दैट इज 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4, गिविंग अस r इज इक्वल टू 2। r का वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट। सो r इज अ डिस्टेंस, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा।
Now we know that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Let's put the value of x and y. So हमें मिला √2 is equal to 2 into cos of theta and √2 is equal to 2 into sin of theta. अब विल जस्ट टेक 2 ऑन दैट साइड, दोनों जगह पे हम इसको साइड ले लेते हैं, तो हमें मिलता है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 2 एंड sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 2. So we can say that cos of theta is equal to 1 upon √2 and sin of theta is equal to 1 upon √2. अब हमें पता है sin वैल्यू और cos वैल्यू 1 upon √2 कब लेता है. Both of them take it when theta is equal to pi by 4. So since the point lies in the first quadrant, that means you should have theta should have the value between 0 and 2 pi. So tan of theta is equal to 1 and tan 1 वैल्यू लेता है पाई बाय 4 के लिए, तो हम लिख सकते हैं theta must be equal to pi by 4 and hence you can say the polar coordinates of the given points are 2 pi by 4 and done. So अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपको सबसे पहला देखना पड़ेगा आपके पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं. First you will check out the quadrant and then you will find out what is the value of r and what is the value of theta. We are looking at the third question over here. Now the question is, in triangle ABC, if A is equal to 45 degree, B is equal to 60 degree, then find the ratio of its sides. तो हमें ratio of the sides निकालना है. Sides मतलब होता है small a, small b, small c और इनका हमें रेशियो चाहिए. सो दिस इज द रेशियो दैट वी वांट टू फाइंड आउट. a is to b is to c. अब एंगल a दिया हुआ है, एंगल b दिया हुआ है. वी कैन अप्लाई द साइन रूल. सो इन द सॉल्यूशन वी वांट टू फाइंड आउट स्मॉल a is to small b is to small c. ये हमें फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है, a is equal to this should be 45 degree and we are given b is equal to 60 degree. Now we know that a, b, c are the angles of the triangle. So a plus b plus c is equal to 180 degree. So therefore we can say c is equal to 75 degree. यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 45, 60 एंड 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलता है c is equal to 75 degree. अब c का तो वैल्यू हमें मिल गया. So therefore you can say sin of c is equal to sin of 75 डिग्री. सो साइन ऑफ 75 डिग्री लास्ट ईयर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ा था तो वहां पे हमने इसका वैल्यू निकालना सीखा था इन द कंपाउंड एंगल्स. सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू. हियर यू कैन से दिस इज 75. डायरेक्टली नहीं निकल सकता तो इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री. सो दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री. अब साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हम करते हैं यूज, तो ये होता है साइन ऑफ 30 इंटू कॉस ऑफ 45 प्लस कॉस ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 45. ये सबके वैल्यूज हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. ये होता है 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/√2. एलसीएम ले लेंगे तो ये होता है 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2√2. तो साइन ऑफ 75 का वैल्यू हमें मिल गया. Now by sine rule we can say that a divided by sine of a is equal to b divided by sine of b is equal to c divided by sine of c. So that means we can say a divided by sine of 45 is equal to b divided by sine of 60 is equal to c divided by sine of 75. Sin 75 का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, sin 45 हमें मालूम है, sin 60 भी हमें मालूम है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. So that is you get a divided by 1/√2 is equal to b divided by √3 by 2 is equal to c divided by 1 plus √3 divided by 2√2. That means you can say a is to b is to c is equal to 1/√2 is to √3 divided by 2 is to 1 plus √3 divided by 2√2. हम ये पूरे जो रेशियो है इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं. द एलसीएम ओवर हियर इज 2√2. 2√2 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है a is to b is to c is equal to 2 is to √6 is to 1 plus √3. तो हमें मिल गया what is the ratio of the sides and the sum is completed. I hope you have understood this one. Let's take the next question. Next we are taking sum number 6. In triangle ABC, prove that a cube into sine of b minus c plus b cube into sine of c minus a plus c cube into sine of a minus b is equal to 0.
So let us consider the left hand side. So left hand side we are given that a cube into sine of b minus c plus b cube into sine of c minus a plus c cube into sine of a minus b. अब हम यहाँ पे साइन रूल यूज करेंगे. सो साइन रूल के हिसाब से हमें पता है वी कैन राइट स्मॉल a इज इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ a. वी कैन राइट स्मॉल b इज इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ b. एंड वी कैन से स्मॉल c इज इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ c. तो अगर क्यूब है तो यहाँ पे भी ये क्यूब हो जाएगा. सो जस्ट यूजिंग दिस, सो इफ यू आर टेकिंग द क्यूब एवरीवेयर, सो ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज, ये हो जाता है k क्यूब इंटू साइन क्यूब a इंटू साइन ऑफ b माइनस c प्लस k क्यूब इंटू साइन क्यूब b इंटू साइन ऑफ c माइनस a प्लस k क्यूब इंटू साइन ऑफ साइन क्यूब c इंटू साइन ऑफ a माइनस b. अब ये तो हो गया हमारा साइन रूल. नाउ इफ यू लुक एट द एंगल्स ए बी सी, हमें पता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई या फिर 180, राइट. तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू पाई माइनस b प्लस सी, राइट. और अब हमें चाहिए है साइन ऑफ दिस एंगल. तो साइन ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस b प्लस सी. अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हो जाता है साइन ऑफ थीटा. सो यू कैन से दिस वैल्यू इज नथिंग बट साइन ऑफ b प्लस सी. सो साइन ऑफ a के लिए हम लिख सकते हैं. सो देयरफॉर यू कैन से साइन ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ b प्लस सी. You can also say sine of b is equal to sine of c plus a, and we can say that sine of c is equal to sine of a plus b. तो ये हम यूज कर रहे हैं हमारे ये वाले टर्म्स के लिए. ये बाद में यूज करेंगे. पहले हम ये साइन क्यूब को इस तरह से लिख लेते हैं. यहाँ के साइन क्यूब को भी उसी तरह से लिखेंगे और यहाँ के भी साइन क्यूब को उसी तरह से लिखेंगे. के क्यूब हमने कॉमन ले लिया है. सो यहाँ पे ये हो गया के क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी. दिस इज साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन ऑफ सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. अब ये जो हमारा साइन ए टर्म है, ये साइन बी टर्म है, ये साइन सी टर्म है, इसके लिए हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे. सो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ओवर हियर, ये हो जाता है के क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस ये साइन स्क्वायर बी वैसे ही रहेगा. साइन ऑफ बी के लिए हम लिखेंगे साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू दिस इज साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर बी वैसे ही रहेगा. साइन सी के लिए हम लिख सकते हैं ये वाला रिजल्ट जो है साइन ऑफ ए प्लस बी into this is sine of a minus b. Now again we are going to use a result. Now this is by using this rule. Okay, this I have explained you. So as we know that a plus b plus c is equal to pi. Now we can write that k cube is equal to sine square a into this is sine square b minus sine square c. ये दोनों को हमने साथ में कर लिया, इन दोनों को साथ में कर लिया, ये दोनों को साथ में कर लिया मल्टीप्लिकेशन करके. तो you are going to get these terms. So we are going to get k cube into sine square a into sine square b minus sine square c plus sine square b into sine square c minus sine square a plus sine square c into sine square a minus sine square b. अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन ऑल दीज ब्रैकेट्स. सो इनर ब्रैकेट्स, ये बाहर वाला वैसे ही रखेंगे. के क्यूब कॉमन, सो दैट इज के क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर बी. अब यहाँ पे जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं हम कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे भी वही टर्म है, बस ये इंटरचेंज है. बट वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, तो ये हो गया कैंसिल नेगेटिव टर्म के साथ. ये भी ये वाला टर्म है, ये भी कैंसिल हो गया. सो नन ऑफ द टर्म इज रिमेनिंग ओवर हियर. हमारे पास है के क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0 एंड द वैल्यू इज इक्वल टू के क्यूब इंटू 0 गिविंग अस द वैल्यू 0 एंड हेंस इट इज proved. I hope you have understood this. Let's take the next one. We are looking at sum number 8. In triangle ABC, if
we have small a into cos of a is equal to small b into cos of b, then prove that the triangle is either a right angle triangle or an isosceles triangle. So let's see, right angle triangle है तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम. आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है दोनों साइड कोई तो सेम होने चाहिए. दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव ओवर हियर. सो इन द सोल्यूशन गिवन हमारे पास है स्मॉल ए इंटू कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल बी इंटू कॉस ऑफ बी. अब कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू हमारे पास है बाय कोसाइन रूल. सो लेट्स अप्लाई द रूल ओवर हियर. तो हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स सी ए. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे एंड विल डिवाइडेड बाय ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर हियर. सो दिस इज ए स्क्वायर. यहाँ पे भी हम b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लिखते हैं स्क्वायर. नाउ इफ यू लुक एट द टर्म, यहाँ पे ये पूरा टर्म ये पूरे टर्म के साथ कैंसिल हो गया अभी, राइट. नाउ वॉट एवर टर्म्स आर रिमेनिंग विल जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट्स. So this is a square into b square plus c square minus a square is equal to b square into c square plus a square minus b square. We'll open the bracket here with a square, here with b square. तो ये हो जाता है a square b square plus a square c square minus a raised to 4 is equal to b square c square plus b square a square minus b raised to 4. अब यहाँ पे भी एक टर्म कैंसिल हो रहा है, दैट इज a square b square गेट कैंसिल. बचे हुए टर्म्स हमारे पास है. विल टेक दिस a square टर्म ऑन दिस साइड एंड ब्रिंग दिस टर्म टू अदर साइड. तो हमारे पास है a raised to 4 माइनस b raised to 4 इज इक्वल टू a square c square माइनस b square c square. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं टर्म को. तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. विल ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू दिस साइड. सो वी गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों जगह पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है या तो ये ब्रैकेट 0 रहेगा या ये ब्रैकेट 0 रहेगा. सो देयरफॉर आइदर यू गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज दिस ब्रैकेट. तो हमें मिलता है दो साइड का स्क्वायर प्लस करेंगे तो मिलता है थर्ड साइड, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. or you get a square minus b square is equal to 0 giving us a square is equal to b square. मतलब हमें मिला a is equal to b, this is length, तो हमें मिला a is equal to b, this is equation number 2. तो a क्या है, length of one of the side, b is also one of the length of the side. तो हमें मिला दो साइड इक्वल है, या फिर हमें मिला यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से द ट्रायंगल ABC is a right angle or it is an isosceles triangle. I hope you have understood this one. So students, remaining sums of this exercise is your assignment. Please try and complete it. We'll stop over here for the day. Have a nice day and thank you.